10 साल लेगा اور دنیا کو اپنے پاس بلائے گا, ان کے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا, وہ آسٹریلین ایکسپیریمنٹ کو دیکھے گا, وہ انڈین ایکسپیریمنٹ کو دیکھے گا, وہ لاس اینجلس میں کس طرح سے انہوں نے اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد اس کو ڈیل کیا, وہ ویانا جیسے ممالک کو دیکھے گا کہ کس طرح انہوں نے اتنی بڑی انڈسٹریلائزیشن کے بعد ان ایشوز کو ڈیل کیا. تو میری اور آپ کی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے نا سر. اٹ از ناٹ جسٹ پالیٹکس ایوری ٹائم. می اینڈ یو بوتھ او اے ڈیوٹی ٹو دا پبلک. وہ ڈیوٹی ہماری اس پولیٹیکل گریبان کھینچنے سے تھوڑی بیونڈ بھی ہے. آج کیا ہوتا ہے میرے ساتھ سیاسی طور پہ, میری جماعت کے ساتھ میٹر نہیں کرے گا کیا ہوتا ہے, کوئی اور کوئی جیل میں پڑا ہے یا میں کل جیل میں چلا جاتا ہوں, واٹ ول ہیپن. پبلک از کرپلنگ, ٹرسٹ می فار دیٹ. اور میرے اور سیاسی اور آپ کے اور سیاسی اور جماعتوں کے اور سیاسی اس مخمسے میں کہ جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے, آئی ووڈ ویلکم, مجھے سوال کریں, مجھے اسموگ پہ پوچھیں, مجھے انڈر ڈیولپمنٹ پہ پوچھیں, مجھے لوکل گورنمنٹ پہ پوچھیں. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ ڈے, آئی ایم ڈائنگ فار اٹ. کہ یار بات کریں, گورننس کی بات کریں. ٹھیک ہے یہ بکتا ہوگا, اچھی بات ہے, مجھے اعتراض نہیں, بیچیں. لیٹ اٹ بی اے سیلیبل آئٹم, دا بیسٹ اٹ کوڈ بی. اور یہ پاپولیرٹی جب بک رہی ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں اس پہ بھی رہ سکتا ہوں مسلسل, یا میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کما حقہ ہوں وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ او ٹو دا پبلک. میں آپ کو روکنے کو نہیں کہہ رہا, وہ آپ کا کام ہے, آپ نے کرنا ہے. سیاست پہ بات کرنی, یہ پالیٹکس از نو سن. آن دا ادر ہینڈ آئی لیو آن اٹ, بہت ضروری ہے. لیکن اس موقع پر پریسائزلی میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 1 سال آپ کا گزرا ہے. اس سی پی اے کانفرنس میں ہم ان سیریس چیلنجز کو انڈر ٹیک کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اس صوبے کو, اس ملک کو, اس ریجن کو پنجے گاڑ کر. دیکھیں میں آئی ایم انڈر نو فیئر آف سیئنگ اٹ, مجھے کسی قسم کی کوئی ایک لمحے کا تامل نہیں ہے. میں ہندوستان کے ساتھ چاہتا ہوں کہ نارمل تعلقات ہوں. آئی ڈونٹ شائی اوے فرام سیئنگ اٹ. میں چاہتا ہوں ٹریڈ ہو. اگر یہ یونین یورپ میں بن سکتی ہے تو وائی ناٹ ان سارک, کیا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں یہ دہشت گردی کی افریق سے جان چھٹے. میں چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان سے جو سپل اوور میرے ملک میں آ رہا ہے, مجھے پیس, سکون کا سانس ملے. میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں کہ یار ایسے نہیں ہے یہ, میں آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ, میں کچھ سپارٹا نہیں ہوں. میں کیوں کسی کی بندوق اپنے گلے میں ڈال کے ہر وقت اس کی نالی آسمان کی طرف کر کے پھروں. وائی شوڈ آئی ڈو اٹ. میرا آئی وانٹ نارملائزیشن. اور جتنی شدت آج کی آپ کی پوری تکلیف آئی ہوئی ہے سیاست میں, عوامی ڈیلیورنس میں, تو somebody is doing something. اب وہ کون کر رہا ہے, لیٹس سے گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس گورنمنٹ کے وہ جو کیے کام ہیں, ایک وقت کے لیے ذرا تھوڑا توقف کریں, ایک لمبا سانس لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا کریں. از دس وسائل کا رخ انڈر پریولیجڈ کی طرف موڑنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے. بحث کرتے ہیں اس میں. شہروں کو صاف کرنا اچھا کام ہے, دیہاتوں کو. مجھے علی چیمہ, پروفیسر علی چیمہ از ڈین آف دی لمز, آئی ایم آن ٹی وی, آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں ان کے ایک فائنانس کمیشن, انٹرم فائنانس کمیشن میں, شہباز صاحب واز ویری کائنڈ ود می, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی اس کا ممبر ہے, چلا جا. میں کہا سر وہ چلے جاتا ہوں. آئی وینٹ دیر. تو وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی تو آفٹر فیو منٹس آئی تھاٹ یار, میں نے کہا میرا یہاں بیٹھنا بنتا نہیں. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, ایک گاؤں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ناٹ دس سیکٹری فائنانس ہوز ایور ایٹ دیٹ ٹائم واز, آئی ڈونٹ نو, دس پروفیسر آف لمز یونیورسٹی. یہ تو میری, میں 70% ہوں اس صوبے کا. جہاں میرے شہر میں, جہاں میرے گاؤں میں جو اربن ٹاؤنز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کھڑیاں بات کر رہا ہوں, میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں, جہاں پر اوپن ہیپ لگ رہی ہے سر. بٹ صاحب وہاں لگ رہی ہے 70 سال سے. وہ جو چھپڑ بن گیا ہے وہ مجھے چڑھا رہا ہے, میرا منہ چڑھا. یار میرے مسئلے ہیں یہ, آئی کین ناٹ لیو لائک دس. آئی نیڈ اے اسپیس. مجھے, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو میونسپل ٹیکس نہیں دیتے ان کے میونسپل سروسز کے رائٹس نہیں. تو میں پھر باہر سے دنیا کو کیوں نہ بلاؤں. میں سری لنکا کو بلا کے ان کا لوکل گورنمنٹ ماڈل دیکھوں کہ یار آپ لوگ
के देहात हैं, आपकी स्लम्स हैं, आप उनको कैसे डील कर रहे हैं? टेल मी, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपके तजर्बे से सीखना चाहता हूँ. So this CPA conference is helping me in sustainable rural development. कैसे होगी? And I'm thankful to Chief Minister Punjab कि जिसने सुथरा पंजाब में इस nonsensical approach को कि जो municipal tax नहीं देता, he has no right or she has no right, या those villages have no right for municipal services at all, उस एक नामुकम्मल और इंतहाई बेहुदा बहस से मुझे बाहर निकाला. I'm thankful to her. मैं इसके लिए लड़ता रहा, इसका एडवोकेट रहा, लेकिन फाइनली हु हर्ड माई वॉइस इज द टुडेज चीफ मिनिस्टर. मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि ये असेंबली अहले हल वक्त की जगह है, जिसके ज़िम्मे ये काम है, कानून में लिखे, आइन ने लिखे, मैं नहीं कह रहा, जिसके ज़िम्मे है कि इसने बजट बनाना है ए, जिसके ज़िम्मे है इसने कानून बनाना है बी, जिसके ज़िम्मे है इसने आपकी ज़िंदगियों के फैसले करने, कवानीन, लेजिस्लेशन, बजट, पॉवर्टी एलिवेशन, इट ऑल हैपन्स इनसाइड देयर. जहाँ पर इतने बड़े फैसले होने हैं और वहाँ पर सिर्फ तू तकार हो, गालम गलोच हो, वो जो जगह अहले हल अक्त की है वो होस्टेज हो जाए, चाहे मेरी पॉलिटिकल पार्टी उसको होस्टेज करे, भाई क्यों करे? वो जो तमाशा करना है मैंने सियासी, मैं गेट से बाहर करूँ ना, या कोई और होस्टेज करे तो क्यों करे? लेट्स टॉक ऑफ पीपल, लेट्स डिस्कस. तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस कॉन्फ्रेंस में, ये मैंने आपके सामने एक मुकदमा रखा है, और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, जो गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 22 डिफरेंट असेंबलीज, और उनकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं. लेट्स से लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ श्रीलंका कैन टेल मी द स्टोरी ऑफ सक्सेस. आज मैं उनके जब जाके देखता हूँ तो आई बीन टू श्रीलंका ट्वाइस, and I was, Ahmed has recently been there, अभी होकर आए वहाँ से, and I trust must be Sarah must have gone there. बिल्कुल स्पॉटलेस, उनके शहर देहात, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स ने, तभी हमने पीछे सुना ना कि उनकी इकोनॉमी क्लैप्स कर गई, हम सब ने सुना सर, दे वेंट ऑन अ बेल आउट, उनकी इकोनॉमी क्लैप्स कर गई. उन्होंने जो थे लोगों के घरों को आगे लगी हुई टीवी स्क्रीन्स पर हमने देखी ना, वी ऑल सॉ दैट. But what actually happened is that they have emerged out of those crises. हमारा बिल्कुल ना उम्मीद नहीं है. मैं if I can tell the story of hope, आज ही अगर मैं story of hope बताऊंगा तो trust me that hope which comes on your platform, it affects me. It is such a powerful medium. इतना powerful medium है आपका. मैं आज कोई फिल्म देखते हुए हंस भी लेता हूँ, रो भी लेता हूँ, इतना ताकतवर मीडियम है. वंस यू आर टेलीवाइजिंग माई वॉइस, शोइंग माई पिक्चर बोथ एट द सेम टाइम, इट हैज़ एन इम्पैक्ट. मैं मान ही नहीं सकता उसका इम्पैक्ट नहीं हो. सो मेरे और आपके ज़िम्मे इस सियासत के साथ साथ, या तो आप असेंबली की प्रेस गैलरी से मुंसलिक ना हो, आपका एक शो है जो आप टीवी पे बैठ के करते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल शो, सर यू हैव एवरी राइट टू डू वट एवर यू डू, बट इन कॉल ऑफ ड्यूटी, मैं आपके ब्यूरो चीफ्स भी बैठे हैं, आपके बैठे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इफ़ दिस असेंबली कैन डिसमिनेट सच ऑर्डर जिसमें वो बताए कि येस वी आर फाइटिंग विद दिस मैनेस. हम ये आपके सामने, मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो प्रोग्राम, उसको पूरी ओनरशिप, पूरी पंजाब असेंबली इज़ ओनिंग एवरी वर्ड ऑफ इट. कोई पार्लियामेंट्री पार्टी इलेक्शंस के बाद, आपको मुझे मुखसूसा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे सीनियर साथी बैठे हैं, इलेक्शंस के बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो फेस होती है वो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी होती है. इट इज़ स्पीकिंग इन वॉल्यूम्स, लाउडली बोल रही है कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, दे आर ऑल पब्लिक सेंट्रिक, यूथ इंगेजमेंट है, ये देहातों को साफ कर रहे हैं, और सारे सीरियस चैलेंजेस हैं. 60% लोग मेरे इस सूबे के 60% से अबव 18 साल से 24 साल की उम्र के दरमियान है. अगर उनकी तरफ वसाइल का रुख नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? ये उनको अगर वज़ाइफ नहीं मिलेंगे, या ये उनको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे, उनके लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा, तो लेट्स टॉक ऑन इट. बात करें कि ये जो आज ये जो लीडर्स फॉर टुमारो की कैंपेन है, इसमें क्या है. लेट्स टॉक ऑफ इट, लेट्स इसके मेरिट्स, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इशू बेस्ड बातें करें. अभी किन्नू फड़ लिया, किन्नू छड़ देता है, किन्ने कर लिया, यार थक गया, मैं तो थक गया है सवेरे,
وہ جتھے اج کوئی اور بیٹھا اتنے میں سا یار ڈونٹ آئی نو اٹ کنے چڑھنا ہے مینوں یہ بھی پتہ ہے. تو لیٹس پٹ اے بریک آن اٹ. تو آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں ان ایشوز پر جن کی بات ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ دیز 4 days which are coming 7th and 8th, اس میں آپ نے اس کو کور بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ہے, رپورٹ بھی کرنا ہے. آپ سے ہم کہیں نہ کہیں رہنمائی بھی مانگتے ہیں. تو اس کو اسپرٹ کے ساتھ وی آر گوئنگ انٹرنیشنلی ان ایکسپیرینسز کے ساتھ جس میں جینڈر ایکویلٹی کا ایشو ہے, جس میں وومن امپاورمنٹ کا ایشو ہے, جس میں لوکل گورنمنٹس کا اور رورل ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, سسٹینیبل ماڈلس کا ایشو ہے, انوائرمنٹ ہیز. یہ اسموگ میں نے ایک کارڈک اور پلمونالوجی والی اگزامپل دی ہے, لیکن کچھ لوگ شرح اموات کی بھی رپورٹس کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس سال میں کتنی اور اگلے میں کیسی ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیجنگ کی اگزامپل رکھی ہے. مجھے I have to praise here Minister for Environment also. مطلب she has come very مجھے سیکٹری بتا کر گئے راجہ جہانگیر انور, and the detail he has given me, I have to ہمیں ان کے جو یہ کام ہے ان کی ذرا اسکروٹنی کر کے لے چلتے ہیں. سو I thank you once again. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی جو ہمارے دوست بیورو چیف اور سینئر ساتھی ہماری ریکویسٹ پہ آئے. ہم چاہتے تھے کہ آپ اس انوگریشن کے موقع پہ آپ کا ہونا یہاں پر ہمارے لیے بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. یور انسٹیٹیوشنز جو آپ کے اپنے ادارے ہیں وہ بھی ادارے ہیں. دے شوڈ نو دیٹ یور ورکرز اینڈ یور پیپل دوز ہو آر ہیئر ایز رپورٹرز, ایز جرنلسٹ, وہ سب ہمارے ساتھ ایک جل کر کے اسی احترام کے ساتھ اس اسمبلی سے منسلک ایوری سنگل پرسن ہیز اے رول ان دس ڈیموکریٹائزیشن پروسیس. یہ ایک پروجیکٹ ہے, جمہوریت ایک منصوبہ ہے. اس میں جہاں پر غلط ہو گیا اس پورے منصوبے کو نقصان پہنچے گا. اس میں کہیں نہ کہیں میری سطح پہ غلط ہو جاتا. کہیں آپ مجھے اس دن کسی ایک بندے نے کہا کہ یار آپ بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں, آپ تو فارم 47 ہے. میں نے کہا ہولڈ آن, بریک لگائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تھنک فیسٹ میں ایک نوجوان بچہ پلانٹڈ کھڑا تھا. میں نے کہا آئی وینٹ ٹو اسمبلی, آئی ون, آئی ہیو دا ریزلٹس. میں تو اپنی بات کر کے آ رہا ہوں کہ میں جیتا ہوں. دا فیٹ ہیڈ اے سلاٹ فار می. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے, میری پارٹی لیڈرشپ نے مجھے نامینیٹ کیا, میں اسپیکر بن گیا. اب میرے پاس سارا ریکارڈ آیا کہ کتنی پٹیشنز ہیں ٹوٹل. 37 میرے خلاف بھی ہے. میں تو جانتا ہوں میرے خلاف پٹیشن غلط ہے, لیٹ سے چلیں. اب میں نے کہا میں 37 کی 37 بشمول اپنی سب آپ کو دے دیتا ہوں, آپ لے لیں. یہ آپ کی ہوگی 37. یہ گورنمنٹ 100 کچھ ووٹوں کے فرق سے بنی ہے, تو یہ 37 کی 37 آپ کی ہو بھی جائیں تو پھر یار یہ چھوڑے. یہ RTS کا جھگڑا ہم نے ڈالا, نظام کے اوپر پڑا. اس سے پہلے 4 سیٹوں کا حلقہ آپ نے ڈالا. اس سے پہلے میں نے پیپلز پارٹی کو ڈالتے دیکھا. وہ سارا ایشو, اس سے پہلے مسلم لیگ میں کہیں سیسو زگ زیگ چلتا رہے گا. لیٹس بی فیئر آن ون تھنگ. آئی کین ناٹ پریچ what I have done. میں اس بات کی دنیا میں اگر کہیں ایسا ہو سکتا ہے تو میں سمجھنے کو تیار ہوں کہ پبلک اسپیکنگ میں جو میرا عمل ہے وہ اس کے متضاد ہو اور میں درس کوئی اور دے رہا ہوں. نہیں ہوتا. اگر میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں تو دین ہیو ایوری رائٹ ٹو سے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہوں. اور اگر میرا کردار ہی ہو کہ میں آپ کے حقوق کا تحفظ نہ کر رہا ہوں, آپ کے ان ٹائم آف یور رائٹس ٹو بی گیون ٹو یو اویلیبل ہی نہ ہو, تو پھر آئی ہیو نو رائٹ ٹو پریچ دیٹ. تو ونس اگین سر آئی تھینک یو فار بینگ ہیئر. آپ سارے دوستوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں. میں ایک منٹ پلیز, ایک منٹ میں خود آپ کو دیتا ہوں گائز. میں پہلے درخواست کروں گا ہمارے سینئر دوست بیورو چیف صاحبان یہاں تشریف لائے ہیں, ان میں سے اگر کوئی سینئر دوست بیورو چیف سوال کرنا چاہے تو پلیز, اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بتا دیں. شہزاد حسین بٹ صاحب, بیورو چیف GNL.
काबिल जानसी के साथ आपको, आपकी टीम को, चीफ मिनिस्टर साहब को अच्छे खुशहाली आज अच्छा दिन है और समझता हूँ हमारे डॉक्टर्स का के सदर ख्वाजा साहब को भी ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो आज इस मौके पर तीन सवाल तो पूछा नहीं जा सकता क्योंकि आज हमारा ईद का दिन है। नहीं, मैं तैयार हूँ। आप टीका पूछना चाहते हैं? नो इश्यूज विद इट। नहीं, हम टीका और तीखा दोनों छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलेंगे आप। ईद मनाना चाहते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपने फरमा दिया तो इतना भी जरूर मैं खान साहब से जरूर करूँगा कि हमारे गॉसिप्स चल रही हैं अखबारात में, टीवी चैनल्स में, सड़कों पर गुजारे हो रहे हैं, कुछ चार लाइनें ऐसे बोले जिससे साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो, जो खौफ का एक लिबादा उड़ा जा रहा है बार बार कि अब जो बोलेगा वो जेल जाएगा, आप पकड़े जाएंगे, अब ये होगा और इस एक्ट में ये है। इस पर कुछ ऐसी लाइन्स बोले जिससे कुछ साथियों की जरा दुख ये वर्षा, देखिए मैं इस बात पे तो मैं मुकम्मल तौर पे कोई विदाउट अ फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और मैं कोई अल्फाज तलाश करके भी आपसे बात नहीं करूँगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पैरामाउंट है और मेरी डिग्निटी, मैं रिसेंटली आपको आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन, हम सारे तारीख़ के, फ़लसफ़े के, सियासत के तालिब इल्म हैं, तो अभी रिसेंट पास्ट में मैं एक नए थीसिस से मेरा तारुफ हुआ है। वो थीसिस डिग्निटी ऑफ मैन का है और ये बहस भी आप तय कर लें कि डिग्निटी ऑफ मैन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या कोई आपस में झगड़ा है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरी किसी कमज़ोरी को, मेरी किसी चोरी को, मेरी किसी नालायकी को, मेरी किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एक्सपोज करती है तो ठीक है, ये राइट है। लेकिन अगर वो मेरा वजूद ख़तरे में डालती है, मुझे स्लेंडरस, और आज के दौर के मामलात मुख्तलिफ हो गए। आज का सोशल मीडिया कन्वेंशनल मीडिया से बहुत डिफरेंट है। उस सोशल मीडिया पे जब आप कोई एक चीज़ करते हैं तो उसकी आउटरीच इन मिलियंस, इट जस्ट स्प्रेड्स लाइक, उसके बाद मैं वो डैमेज कंट्रोल कैसे करता हूँ। तो मेरी बहस डिग्निटी ऑफ मैन के गिर्द घूमती है, जिसमें फ्रांसिस फुकुयामा की ये अप्रोच कि वो रियासतें जो किसी फ़र्द की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, वो रियासतें अपना वजूद खोती हैं। अब मेरी ये बहस एक अदारा जाती बहस में बनती है। अगर वो बहस मैं यहाँ तक लेके जाऊँ कि किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ स्लेंडर, मलिशियस, प्रोपोगेटिव, जो उसकी पूरे वजूद को उड़ा रही है, हाँ अगर कुछ गलत है करें, और फिर कोई आपके साथ इंसिडेंट्स ज़्यादती के हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता। सहाफ़ियों पर हमले हुए हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। हर वक्त उस मौके पर हमने सॉलिडेरिटी जिस तरह सहाफ़ियों के साथ की है, अनडाउटेडली उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो डिग्निटी ऑफ मैन का मुकदमा है, हम इसके भी वकील हैं। अब इसके ऊपर आप बैठना चाहिए। मेरी राय ये है कि आपकी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, आपके पास आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है गवर्नमेंट की, और अब इसमें हु कैन डिनाई, ISPR कम्स एंड टॉक्स टू द मीडिया एवरी सेकंड डे, दे हैव अ रोल, दे शुड सिट एंड टॉक, बात करें, क्यों नहीं करें। अब बाहर बैठकर एक एब्नॉक्शियस आदमी जो वहाँ से बैठ के टोटली मलिशियस, प्रोपोगेटिव और इस हद तक ज़िल्लत अमेज़, और उसमें लोगों की, मैंने ये देखा है जज साहिबान की ना बेटियाँ छोड़ी ना बहुएं छोड़ी, तस्वीरें लगा दी साथ में। व्हाट आर वी टॉकिंग। और उसके पीछे वो जो लोग उसको चला रहे थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग थे और कुछ मीडिया हाउसेस के भी लोग साथ मिले। क्या करें। सो वी हैव टू सिट, बात करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पैरामाउंट है, सहाफ़ियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए, दुरुस्त है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और डिग्निटी ऑफ मैन भी उतना ही पैरामाउंट है। नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये सवाल आपने सुन लिया, कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन नहीं होगी। अब्बास नकवी साहब। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा इनाम है। मेरा आपसे सवाल बड़ी अहम आज आपने बात की मीशत के हवाले से कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। आपको पता है कि दुनिया में अप्लाई नेशन की चल रही है और हम इसमें कहीं भी नहीं है, तो बात कौन करेगा। फैसला साज भी आपके साथ रास्ते में है, आप खुद भी फैसला साज है, हुकूमत ने इस वाले से कभी गौर खोज नहीं किया कि मुल्क में कहाँ जा चुकी है, हमारे छापों वाली कहाँ जा चुकी है, क्या बात कर रहे हैं। तो ये मामला हल कैसे हो गया। अफगानिस्तान से भी हमें मार पड़ रही है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, भारत से भी मार पड़ रही है, ये मामला रिजॉल्व कौन करेगा।
जमा फ़िक्री है। मेरा ये मानना है कि जो आपके साथ जो आपके बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं उन पर बैठ के तो हुकूमतें बात कर ही रही होंगी। मैं तो एक अमूमी और मजमूई बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात की नोयत ऐसी हो तो ख़तरात बढ़ते जाते हैं। इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। शाहिद चौधरी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो पहली मरतबा हमें कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करके दिखाया। अखलाक वाला साहब के हवाले से आपने जो किया पूरी सहाफ़ी बरात में आपको करारे पैसे पेश कर दिए। मेरे साथ सवाल ये है कि आपने हमारी बात सुनी थी, वफाकी हुकूमत आपने भी बरसत को कहा कि आप लीगा पे कर लें बात, कोई बात नहीं, और आपने हमेशा ही साफ की बात सुनी है। मेरे साथ हम ये चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाती, हमारे कायदीन आपके साथ बैठते, वफाकी हुकूमत के साथ बैठते, उसके बाद टीका एक्ट जिसे हम काला कानून कहते हैं उसे बेशक मंजूर कर लिया जाता। वही बातें जो अभी आपने अपने सवाल में कही कि बाहर से बैठे हुए लोग हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे वतनी अजीज के खिलाफ है, हमारे अदारों के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं मेरे साथ। लेकिन एक लहर हो गई है कि शायद मैं सवाल करूंगा, मैं लिखूंगा कि ये फलां शख्स है, इसने ये किया, तो वो शख्स मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाएगा। कोई भी शख्स इनमें से कोई उठेगा, वो कहेगा शाहिद चौधरी ने जो सवाल किया है ना, इससे जनाब मेरी वतन की इज्जत हो गई है, ये गलत हो गया है, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। अच्छा, मैंने कोशिश की है, शायद मेरी बात सुन लें, शायद लेट्स सवाल को सवाल रख के तकरीर ना करें। मैंने कोशिश की है कि मेरे हाफजे में कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसमें मैं कोई एक ऐसा मुकदमा ढूंढूं जो पाकिस्तान में डेफामेशन के तौर पे आज तक कामयाब हुआ। मुझे नहीं मिला। सो पहले तो हम ये एडमिट करें कि हमारे डेफामेशन लॉज जो हैं वो डिग्निटी ऑफ मैन का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे जो रिक्वायर्ड है। एक दूसरा मसला आ गया आपका कि आप ये मिसयूज़ होगा लॉ, ये आपकी एप्रीहेंशन वेल फाउंडेड है, जायज़ बात है। इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए। अब ये दो बातें आ गई। तीसरा कि क्या कोई हुकूमत या कोई अदारा या रियासत अपने इस सतून के साथ इंगेज हुए बगैर कामयाबी से चल सकती है? नहीं चल सकती। तो तीनों बातें जब तय हैं तो फिर वो उसी अंदाज में होनी चाहिए जिस अंदाज में उनका होना ज़रूरी है। अब मेरे जैसे लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी बात है। तौर पर हम आहंग भी हूँ और मैं ये समझता भी हूँ और मैं साथ इस बुराई से भी बड़ा खौफजदा हूँ जिस बुराई ने अफरीत बन के पंजे गाड़े हैं, मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया है, मेरे मुल्क की पूरी सोसाइटी के अंदर क्लीवेज इतनी डीपन कर दी है, हेट स्पीच को इतना बढ़ा दिया है, लोगों की इज़्ज़तों को सरे बाज़ार नीलाम कर दिया है, अदारों की हुर्मत तख्तो ताराज करके फेंक दी है। देखिए ये जो फ़ौजें होती हैं ना या ये जो अदालतें होती हैं, इनके दो सवाल होते हैं। ये फ़ौजें अपने वेलर पे, अपनी ड्रम बीट पे, अपने तमगों पे, अपनी वर्दी पे, अपने तरानों पे, देखते हैं आप, कोई फ़ौज जब मार्च करती है, आज से नहीं कई सदियों से, तो ड्रम बीट हो रही, क्या ज़रूरत है साथ बैंड्स बजाने की? दे नीड अ सर्टन सेंस ऑफ प्राइड। उनका वो वेलर, उनका वो तम तराक, उनकी वो बड़ी एक आलीशान उनको एक आपको देनी पड़ती है। जब आप उनकी डिग्निटी इरोड कर देंगे, यार व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ? मैं उस चीज़ से भी परेशान हूँ जहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मैं मुकम्मल तौर पर आपकी बात के सुनने को तैयार हूँ, बट आई कैन नॉट गिव एनीबडी दिस राइट कि वो मेरी डिग्निटी वायलेट करे। इट्स अ ह्यूमन डिग्निटी, इट्स एन इंस्टीट्यूट। ये जजों के साथ देखें, आप देखें आज मैंने कल वो अर्तुगरुल गाजी को सुना, अपने वो क्या नाम है उनका, वकास अकरम साहब, और मैंने सुना कल वो फरमा रहे थे, यार तुसी अंदाज़ा करो, उन्हें तलत ते शो दे विच उन्हें उन्होंने फतह मक्का दे नाल रेट उन्हें क्या जिवें नबी ने कीता यार सानू माफ़ी दे दो यार, बस करो यार, इनफ इज इनफ। डू यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? और जो दिल करता है उठा के शुरू कर दे, कैसे भाई? नो सर, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, एग्रीड 100%।
लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि ऐसे इट्स फ्री फॉर वो। अब इन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और वो साहब आके साथ कहते हैं अपना कि जी उसने की कह की रहे तू तेन पता लगा तू की कह रहे वो तो मुमासलत तलाश यार खुदा का खौफ करिए कितने जाके डिग पे। आरिफ मलिक, लेकिन प्लीज़ मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा, उर्दू में कहूँगा कि एक सवाल को बार बार नहीं दोहराना। मलिक साहब इज़ वेरी काइंड, ही बिलीव ऑन आज़ादी अज़हार राय, ये सवाल हो गया। अब मेरा ख्याल है स्पीकर कॉन्फ्रेंस की जनता है जो हमारा बेटे स्पीकर्स को ये CPA कॉन्फ्रेंस आरिफ मलिक अच्छा मलिक साहब, मैं जहाँ इन बातों की अहमियत को मानता हूँ, पॉपुलैरिटी, जमहूरियत, वहाँ पर जजमेंटल होने के, किसी भी एक फ़र्द के जजमेंटल होने के भी जो मुज़मरात हैं उनसे भी मैं वाकिफ़ हूँ, जिनकी तरफ मैं भी इशारा करूँगा जो आपने सवाल किया। मतलब ये हक कौन किसको देता है कि वो इसका तयन करे? कोई डेटा है, कोई सेंसस हैं, जैसे मैंने आपके सामने खुद ओपनली मैंने बात की। अब अगर एक मीडियम मेरे पास मेजर करने का है कि पंजाब में अगर इलेक्शंस को पॉपुलैरिटी का पैमाना आप तस्वुर करते हैं तो देयर आर जस्ट 37 पिटिशंस टोटल। नाउ इफ आई कुड फिगर दैट पॉपुलैरिटी, तो सीट्स की सूरत में तो मेरे पास पड़ी हैं, तो आपको जजमेंटल होने का हक मलिक साहब कौन देगा? क्या आप अपनी राय को, अपनी पसंद नापसंद को जजमेंटल होकर पब्लिक डोमेन में लाकर समझेंगे कि आपकी ये जो राय है ये पूरी अवामी राय की मज़र है? ऐसा नहीं है। मैं आपसे मुकालमा करने की बात कर रहा हूँ, आप फिर तहकीर करने की बात कर रहे हैं। मेरे मुकालमे में और आपकी तहकीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही जमहूरियत का और इन शैम रवैयों का फ़र्क है जिनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे से बहस कर लें, दलील दे लें, रद्द दलील कर लें, बातचीत करें, तहकीर ना करें। मैं आपके साथ बात करते हुए ऑफेंसिव हो सकता हूँ, मेरा एक जुमला इतनी शिद्दत का होगा कि वो आपको काट डालेगा। मैं सारा दिन आपके वो काट देने वाले जुमले सुनकर हौसले से उनका जवाब देता हूँ। ये मेरा पेशेंस है। दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है। शकील मलिक साहब, देखिए, हमारी अभी पास्ट में एक यूरोपियन यूनियन के साथ एक इंटरेक्टिव सेशंस में हम रहे हैं, जिसमें मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रोपोगेंडा कुछ ऐसे लोग ज़रूर कर रहे हैं जिनके को मलिशियस इंटरेस्ट हैं या मोटिव्स हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल फॉर श्योर, हम अभी ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट में भी गए थे, हम आयरलैंड भी गए थे, वी हैड गुड मीटिंग्स देयर, और मेरे नज़दीक यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वो जो अभी उनकी यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर यहाँ पे थी, शी हैड अ कॉल अपॉन विद अस, यहाँ पे मेरी उनसे ख़ुद अपनी बातचीत बड़ी तफसील के साथ हुई है। तो जो आज की गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं वो पिछले उन इक़दामात को जिनकी बुनियाद पर वो हमारा स्टेटस हुआ था उसको इन्हांस कर रही है, फर्दर उनके अंदर ऐड ऑन कर रही है। तो आई फाइंड नो रीज़न, ये सिर्फ एक प्रोपोगेशनिस्ट अप्रोच है, और मैं उन अफराद का जिन लोगों का उसमें किरदार था उस वक्त की हुकूमत का, आई एम थैंकफुल दे डिड अ गुड जॉब, अच्छा काम किया। और ये रोज़मर्रा का अमल है, ये आपके यूनियन के साथ रिलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट आपकी रिलेशनिंग है, आपके लोग जाते हैं बात, एंड आई विल एक्नॉलेज चौधरी सरवर साहब गुड रोल इन दैट, आई विल एक्नॉलेज, मैं क्यों नहीं करूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन प्लीज।
देखिए इसमें असल हम एक सस्टेनेबल मॉडल जो बाकी जमहूरियत का जो असल मुद्दा है कि आप उसके समरात अवाम तक कैसे पहुंचाते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर हम इन्वायरमेंट का जो चैलेंज हमारे सामने है उसमें उन प्रैक्टिसेस को देखेंगे, बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस उन असम्बलियों की जो 20-22 असम्बलियों के लोग हमारे साथ अपने तजर्बात शेयर करेंगे, और रूरल डेवलपमेंट पे हमारा बड़ा क्लियर फोकस होगा, लोकल गवर्नमेंट्स पे बड़ा क्लियर फोकस होगा। तो जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो SDGs के हमारे गोल्स हैं, उन सब को हम कैसे लेकर आगे चलेंगे और आपस में कोहिजन कैसे होगी, बेहतरी कैसी होगी, ये रीजन उनको कैसे लेकर आगे चलेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूं।